Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Parshala. Today I'm going to take CBSE class 11th and from your Hornbill book I'm going to take poetry section first and the chapter name is A Photograph. In this video I'm going to teach you about the author, explanation of the chapter, summary of the chapter. About the author. Shelley Toussaint was born on 20th May 1924 in Henley on Thames, England, as a daughter of Douglas Horsfall Dixon and Marjorie Brown. Actually, she was the daughter of one of the best writers in the world, Douglas Horsfall Dixon. Shelley Toussaint has died in the age of 94. She was poet, teacher, educational, journalist, and editor. And she has written many books as an author, as a writer, and she has 28 books on Goodreads with 21 ratings in 1970 for a double time shadow in a orchard poem, etc. She was very famous poet in the world and she had written many books like Goodreads 21 ratings and all. Explanation of the chapter. Stanza 1. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother hands, and she, the big girl, some 12 years or so. At the uncle, all three stood still to smile through their hair. At the uncle with the camera, a sweet face. My mother's that was before I was born. And the sea, which appears to have changed, less was their terribly transient fit. A photograph. Every person knows, suppose if we are hearing the name of a photograph, what is the come in our mind? No doubt some memories are there, maybe some sadness, some happiness, some memorable moments which cannot regain. Once the time is spent, it will never regain. In the same way, a photograph always shows some memories to us. Either it is a famous, it is a sad one, it is a some good events or some celebration, everything. Suppose it is not talking about the photograph, it is always so some event, some memorable event which we cannot relive, जिसे हम कभी जी नहीं सकते. फोटोग्राफ अपने आप में एक मेमोरी होता है लाइफ में, जो हर इंसान जो अपनी लाइफ में जो भी स्नैप होते हैं, जो भी फोटोग्राफ्स होते हैं, जो भी पिक्स होती है, जब भी हम उसको देखते हैं तो सिर्फ वो फोटोग्राफ नहीं होता है, एक लाइफ का हिस्सा होता है जो ऑलरेडी हम अपनी लाइफ में जी चुके होते हैं. तो यहाँ पर भी एक फ़ोटोग्राफ जो यहाँ पर शेरली ने क्लियरली बताया है अपनी मदर को लेके, एक जो पोइटेस है अपनी मदर के बारे में बता रही है कि एक अपनी मदर का जो उसने फ़ोटो देखा है तो किस तरीके से उसमें जो है एक मेमोरी आई है अपनी मदर को लेके. तो कार्डबोर्ड थिक एंड स्टिफ पेपर होता है, गत्ता जिसे हम कहते हैं, जो गत्ते के ऊपर जो लगा हुआ होता है एक फ़ोटो, दैट इज़ कॉल्ड कार्डबोर्ड. शोज डिस्प्ले मैक्स विजिबल. पैडलिंग का मतलब होता है वॉकिंग स्लोली इन अ सेलो वाटर. अगर जब कभी भी हम पानी में जब स्लोली चलते हैं बड़ी छपछपाते करते हुए, दैट इज कॉल्ड पैडलिंग. होल्डिंग में स्केचिंग, पकड़े हुए. स्टूड वर स्टिंग, वहाँ पर स्टैंडिंग कर रखी है जो खड़ी हुई है. एंड स्टिल विदाउट मूविंग, जो बिल्कुल भी हिल डुल नहीं रही है.
दैट इज कॉल्ड, एंड स्वीट, वेरी लवली, जो बहुत प्यारा सा सीन जो है वहाँ पर, सी मीन्स समुंदर, appears, looks, seems या ऐसा लगता है, change, look another form, जो change बदला हुआ सा लगता है, terribly, too much, जो बहुत ज़्यादा होता है, transient, transit means है जो hasty, quickly moving, जो quickly moving होता है उसको बोलते हैं. तो that is your vocabulary of this stanza. So I'm going to explain this. Okay, the poet looks at the photograph of her mother, which was taken when her mother was 12 years old. ये जो फोटोग्राफ है, जो पोइटेस ने अपनी मदर का फोटोग्राफ लिया है, जब वो उस फोटो को देख रही है तो वो जो फोटो में जो पिक्स है वो उसकी मदर की है, जब वो पैदा ही नहीं हुई थी, जब वो बॉर्न ही नहीं हुई थी, उससे पहले कि वो फोटो उसकी मदर की है, जब उसकी मदर जो है 12 years old थी, एंड द मदर हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडे विद हर कजिन बेटी एंड डॉली, और उसकी मदर जो है, उसकी जो दो कज़न सिस्टर है बेटी और डॉली, उन दोनों के साथ वो जो है सी ट्रैवलिंग पे गई है, वहाँ पर पैडलिंग करने के लिए गई है, समुद्र किनारे छप छपा करते हुए घूमने के लिए गई है वहाँ पर. एंड वाइल दे वर पैडलिंग, जब वो पानी के अंदर धीरे धीरे चल रही थी, पानी में छप छप करते हुए, आवाज़ करते हुए चल रही थी, हर अंकल टुक अ फोटोग्राफ ऑफ दैम, और उनके साथ उनके एक अंकल भी थे जो उनका जो है फोटोग्राफ ले रहे थे. ईच वन ऑफ द कजिन्स वाज होल्डिंग द हैंड्स ऑफ द पोइट्स मदर एंड हु वॉज द एल्डेस्ट अमंग दैम, और वो जो दोनों उसकी कज़न सिस्टर जो थी बेटी एंड डोली, वो दोनों एक एक हाथ पकड़े हुए उसकी मदर की थी, और उसकी मदर बीच में खड़ी हुई थी, वो उन दोनों से बड़ी थी. इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा एजेड थी, शी वॉज ओनली 12 years old, and all three of them stood smiling through their hair while the photograph was taken. Suppose if we are going any kind of holidays and suppose we are going to visit any place, तो वहाँ पर जो हम शो करते हैं, जैसा आज का ट्रेडिशन चला है सेल्फी वगैरह है, तो आज का दौर तो बहुत ज़्यादा फेमस है हर चीज़ के लिए कि हम मोबाइल को 24 आवर्स जो है यूज़ करते रहते हैं, हर पोज देते रहते हैं, कभी मुंह को टेढ़ा किए हुए, कभी सीधा किए हुए, बालों को कभी इधर से उधर करते हुए, कभी इठलाते हुए, नज़ाकत के साथ बड़ी अदाएं दिखा दिखा के हम अलग अलग फ़ोटोग्राफ लेते हैं. तो उस ज़माने में जब ये बहुत साल पुरानी जो पोइट लिख रखी है पोइम, तो इसमें जो है जब उसके अंकल उसका फ़ोटोग्राफ ले रहे हैं कैमरा से, जब वो सी हॉलीडेज़ पे गई है, तो ये उस वक्त का फोटोग्राफ है जब पोइटेस की जो मदर थी वो खुद बच्ची थी, सिर्फ 12 years की थी, लेकिन जब वो उस फोटोग्राफ को देख रही है तो वो अपनी माँ को उन दिनों के लिए याद कर रही है जब उसकी माँ बहुत ज़्यादा जो है क्या थी, बहुत ज़्यादा खुश थी. और उसके बाद जब ऑल दिस हैपन बिफोर शी वॉज बॉर्न, जब वो पैदा ही नहीं हुई थी, उससे पहले की वो फोटो है. एंड ईयर्स फ्लेड पास, नो डाउट पास्ट अपने आप में दौड़ता भागता है, और वो पास्ट जिसे हम कभी भी जी नहीं सकते. हर मदर ग्रू अप इनटू एन एडल्ट, अब उसकी मदर जो है वो क्या हो चुकी है, एडल्ट हो चुकी है. एंड दे ऑल अंडरवेंट चेंजेस, नो डाउट. एक ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो नो डाउट है जो बच्चा जिसने भी बॉर्न किया है, नो डाउट है वो डे बाय डे ग्रो होगा, उसकी एज में इंक्रीज होगा, डे बाय डे वो बढ़ता जाएगा, उसमें काफ़ी चेंजेस आएगा. एक छोटा बच्चा जब इन्फेंट होता है, फिर चाइल्ड होता है, फिर जो है यंगस्टर बनता है, उसके बाद जो है एडल्ट में आता है. तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये स्टेज ऑफ लाइफ है एक ह्यूमन बीइंग की. तो यहाँ पर भी जो है उसकी मदर के अंदर काफ़ी चेंजेस आ चुका है. एक वक्त था जब उसकी मदर खुद 12 years की थी, लेकिन अब उसकी मदर जो है एडल्ट हो चुकी है. एंड दे ऑल वेंट अंडर चेंजेस वाइल शी स्टूड स्टिल एंड सीम्ड अनअल्टर्ड डिस्पाइट द पैसेज ऑफ टाइम. नो डाउट है वक्त को कोई भी रोक नहीं सकता, तो इसकी मदर भी जो है वक्त को रोक नहीं पाई, और वो भी किस कंडीशन में आ गई, एडल्टहुड के अंदर. और एडल्ट में जब वो आ गई तो जब उसने उस फोटोग्राफ को देखा जब वो खुद यंग थी तो वो काफ़ी खुश हुई उन दिनों को याद करके जब वो 12 years की थी. खूब एंजॉय किया था जब उसने अपनी दोनों कज़न सिस्टर के साथ में. तो यहाँ पर भी वो जो है अपने पास्ट को याद कर रही है, और वो बहुत खुश हो रही है उस फोटोग्राफ को देखते हुए, और वो अपनी बच्ची को दिखा रही है जो पोइटेस है हमारी, उसको दिखा रही कि देखो उस ज़माने में है जो है जब हम सी ट्रैवलिंग के लिए जाते थे या सी विजिटिंग के लिए जाते थे,
तो हम किस तरीके से कपड़े पहना करते थे, तो वो फोटो दिखा रही है। जैसे आपने भी अक्सर देखा होगा हमारे फैमिली में जब हमारे पेरेंट्स के कुछ भी फोटोग्राफ होते हैं या पुराने ज़माने के जो भी फोटोग्राफ है, चाहे हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हो, पेरेंट्स हो, तो उन सभी के जब भी हम फोटो देखते हैं तो हमें वो अपने उस वक्त के बारे में बता दे कि देखो उस वक्त ऐसे कपड़े पहना करते थे, ऐसे मेकअप किया करते थे, ऐसे चला फिरा करते थे, ऐसे ये जगह शायद उस वक्त ऐसे हुआ करती थी, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था। मगर आज ये बहुत ज़्यादा चेंजेस हो गया। तो एक्चुअली इसकी मदर ये बोल रही है कि मुझ में तो बहुत सारा चेंजेस आ गया, लेकिन ये समुद्र जो है आज भी वैसा ही है, ये कुछ ज़्यादा नहीं बदला है। तो जैसे समुद्र में हम लोग जाते हैं घूमने के लिए तो हमारे पाँव के निशान मिट्टी पे पड़ जाते हैं, गीली मिट्टी पे। तो ये कह रही है कि मुझ में इतना चेंजेस आ गया है और वो जो मेरे पाँव जो ट्रांजिट फिट जो थे वो बिल्कुल बदल चुके हैं, उस पे जो है पानी फिर चुका है। समुद्र में कुछ इतना बदलाव नहीं आया है जितना मुझ में आया है। मैं एक एडल्टहुड हो चुकी हूँ, एक एज फैक्टर मेरा आ गया है, लेकिन आज भी ये समुद्र वैसा का वैसा ही है जैसा था। तो इन दोनों में जो है एक एज फैक्टर है फर्स्ट पैराग्राफ में कि उसकी मदर में कितना चेंजेस आ गया। तो फर्स्ट जो फोटोग्राफ है, फर्स्ट स्टेंजा है, वो है जब पोइटेस हुई ही नहीं थी, बॉर्न ही नहीं थी। उससे पहले का पैराग्राफ बताया है कि वो दोनों ही जो है जो उसकी कज़न सिस्टर है उसके साथ में फ़ोटोग्राफ लिया है, बालों को उसमें से झांकते हुए, स्माइल करते हुए। तो ये सारा सीन जो इसने बताया है एक तरीके से कि ये सारा सीन अब वो जो है काफ़ी मतलब एडल्ट में आ चुकी है, उसके भी बच्चा हो चुका है, तो काफ़ी चेंजेस आ चुका है इस फोटोग्राफ के बारे में। तो ये जो फर्स्ट स्टेंजा है ये उसकी मतलब खुद उसको बता रही है अपने पास्ट के बारे में जब उसने उस फोटो को देखा था। Stranger 2. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See Betty and Dolly. She would say that, and look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past. Mine is her laughter, but worry with the labored ease of lost. After about 20 or 30 years, the poet's mother would look at the photograph, laughing and remembering the past. No doubt, जब उसकी मदर ने उस फोटोग्राफ को देखा, कम से कम जो है 20 और 30 ईयर्स जो है इस फोटोग्राफ को हो चुके हैं, तो उसकी मदर उस फोटो को देख के काफ़ी जो है मुस्कुरा रही है और उस पास्ट के बारे में याद कर रही है, उस इवेंट को याद कर रही है जब उसने उस पल को बिताया था। जैसे आपने देखा होगा कई पल हमारे ऐसे होते हैं लाइफ के अंदर जिससे हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, कहीं सैड होते हैं। जैसे अक्सर हम जब फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए जाते हैं तो कई ऐसे पल होते हैं उस वक्त जब भी हम मुस्कुराते हैं, लेकिन जब वो वक्त चला जाता है, जब हम उसे फ्यूचर में जब हम उस पिक्स को देखते हैं, कभी कभार जब हम एजेड हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा धुंधली सी यादें हो जाती है, तो हम अक्सर जब फ़ोटो देखते हैं तो वो एक एक सीन हमें याद आ जाता है। चाहे देखो आप फोटोग्राफ से लेके देख लो, या कोई सॉन्ग है, या कोई ऐसा पल, या ऐसा कोई डायलॉग, या ऐसा कोई सेंटेंस जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में वो पास्ट की चीज़ें दौड़ आती है। तो वो एक लम्हे में जो सिमट के जो पल आ जाता है, पूरा सदियों का जो सफ़र आ जाता है, वो होता है फोटोग्राफ है, म्यूज़िक है, सॉन्ग है। वो पल जो आपने वहाँ पर बिताए थे वो एक पल में ही सारे के सारे हमें याद आ जाते हैं। और अक्सर जिन पलों में हम बहुत ज़्यादा मुस्कुराया करते थे, उन्हीं पलों को सोच के आज हम जो है कभी कभार रो देते हैं, क्योंकि वो उस पल को हम वापस से जी नहीं सकते। इसीलिए उस बेबसी के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। लेकिन अक्सर फ़ोटो जो है एक यादें होती है, एक इवेंट होता है जो हमें उस लाइफ के सीन के बारे में पूरा का पूरा शो कर देता है। तो यहाँ पर भी यही है, स्नैपशॉट मीन्स फोटो, लुक, सी, ड्रेस्ड, गोट क्लैड जो कपड़े पहने हुए थे वो, बीच, सी शोर जो समुद्र का किनारा होता है, पास्ट यहाँ पर टाइम दैट गोन जो अतीत जो बीत चुका है, लाफ्टर हंसी, राई, WRY राई, राई का मीनिंग है यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कंडीशन जिसे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, दैट इज कॉल्ड आयरनिकली सिचुएशन। लेबर्ड गॉड बाय हार्ड वर्क, इज कंफर्ट एंड लॉस हार्म। तो यहाँ पर इस फोटो को खींचने से मतलब कुछ 20 और 30 ईयर्स लेटर इस फोटो को देखकर जब वो मेरी माँ मतलब मेरी जो मदर है वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराई थी और उसने मुझे कहा था, देखो बेटा
ये बेटी और डॉली जिन्होंने जो है समुद्र किनारे में ऐसे कपड़े हम लोगों ने जो है पहने थे, और उस दिन छुट्टी का दिन था, और ये सारा सब कुछ क्या है, मेरी माँ का पास्ट था, और अब मेरे लिए उनकी हंसी क्या बन चुकी है, पास्ट बन चुकी है। तो दोनों ही अपने नुकसान को जो है आसानी से भुलाने की जो आयरनिकली कंडीशन है, मतलब एक तो उसकी माँ जा चुकी है, उसकी माँ को भी मतलब गुजरे हुए, डेथ हुए हुए इतने ही साल हो चुके हैं, और उनके लिए ये फोटो जो है क्या हो चुका है, पास्ट, उनकी मदर के लिए। लेकिन पोइटेस के लिए उनकी हंसी क्या हो चुकी है, पास्ट हो चुकी है। और दोनों का नुकसान ऐसा है जो कभी भी क्या नहीं हो सकता, रिकवर नहीं हो सकता, क्योंकि वंस टाइम लॉस्ट इट विल नेवर कम, जो वक्त जा चुका है वो कभी भी लौट कर नहीं आता। तो इन द सेम वे, after about 20 or 30 years, the poet mother would look at the photograph, laughing and remembering the past, and she would comment on dress worn by her cousin Betty and Dolly and herself, and the sea holiday belonged to the past of her mother. And the poet still remembers how mother would laugh looking at the snapshot. तो यहाँ पर जो उसकी मदर है, जो उसका पास्ट है, जो हॉलीडेज जो उन्होंने सी हॉलीडेज बिताई थी अपनी कजिन के साथ में, तो वो जो है बिल्कुल रिकॉल कर रही हैं अपनी मदर की लाफ्टर को। लेकिन दोनों का जो कंडीशन है, जो व्राई है, मतलब एक आयरनिकली सिचुएशन है, वो दोनों में डिफर है। दोनों लौट के कभी भी नहीं आ सकते, क्योंकि उसकी मदर भी जा चुकी है, और जो वो फोटो पे, जिस फोटो पे उसकी मदर मुस्कुराई थी, नो डाउट है ना तो उसकी मदर रही, ना उस फोटो की यादें। तो वो सिर्फ फोटो में एक खामोशी सी रही है, जो सिर्फ उस फोटो को देख के वो फील कर रही है कि वो कभी भी जो है वापस लौट कर नहीं आ सकती। तो वहां पर जो है a rye that is filled with dry or sad amusement for the poet. Both these, the photograph and her memory of her mother, bring great sadness and acute sense of loss. However, time has been a healer of sorts. No doubt, दुनिया में हर चीज़ की जो दवा है वो क्या कही गई है, वक्त। वक्त अपने आप में एक दवा होता है, एक मलहम होता है, एक हीलर होता है, जो लाइफ में कितना भी बड़ा लॉस हो जाए, although the sense of loss that may never go away completely, no doubt in the same way to accept this eventually of life. लाइफ का जो हिस्सा है कि एक बार जो आ चुका है, वो जो चला गया है, वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आता। तो यहाँ पर भी जो चीज़ है वो यही है कि एक बार जो पल जो जा चुका है, जो उसकी मदर के साथ उसने बिताया था, जो उसके कजन्स ने बिताया था, जो उस फोटोग्राफ में था, वो पल सब कुछ जा चुका है, वो वापस से क्या होगा, कभी भी लौट कर नहीं आएगा। वक्त उस चीज़ को जो है भुलाने में हमारे लिए मदद करता है, लेकिन वो वक्त उस पल को वापस लौटाता नहीं है, सिर्फ हमें लाइफ में जो है मूव ऑन करना जो है सिखाता है। क्योंकि एक वक्त में जो चीज़ चली जा चुकी है वो वापस कभी भी लौट कर नहीं आती है। Stranger third. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. सो यहाँ पर जो है इसने क्लियरली हम लोगों को एक चीज़ दिखाई है कि लास्ट में जब इंसान चला जाता है, मौत से जब मिल जाता है, तो सिर्फ क्या हो जाती है, खामोशी हो जाती है। नियरली, ऑलमोस्ट, एज मैनी, जस्ट द सेम नंबर, उतने ही, एज मैनी मतलब यहाँ पर जस्ट द सेम, उतने ही, सर्कमस्टेंस, सिचुएशन जो स्थिति होती है, साइलेंस, क्वाइट, शांति, यहाँ पर डेड का मतलब है, साइलेंस का मतलब यहाँ पर डेड से रिप्रेजेंट है। साइलेंसेज मेक्स क्वाइट, जो आपको खामोश बना देती है। तो यहाँ पर उसे जो है, जो पोइटेस है, उसको मरे हुए लगभग उतने ही वर्ष बीत चुके हैं जितना इस फोटो में दिखाई देने वाली उसकी मदर, तो उतने ही उसको जो है मतलब जिंदा रही, वो उतनी ही टाइम जिंदा रही। तो उस फोटो से जो उसकी उम्र सिर्फ 12 वर्ष की थी, इतनी ही कंडीशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अब उसकी मदर जो है वो जा चुकी है, मतलब उसको उतने ही साल बीत चुके हैं जितना इस फोटो को हो चुका है, तो ऑलमोस्ट उसको कई साल हो चुके हैं। शी हैज़ बीन एबल टू कम टू टर्म्स विद द मदर्स डेमाइस। हर मदर डाइड अबाउट 12 ईयर्स एगो, तो उसकी मदर को भी मरे हुए ऑलमोस्ट कितने साल हो चुके हैं, 12 ईयर्स। नाउ द पोइटेस हैज़ नथिंग टू से अबाउट दिस सर्कमस्टेंस।
It leaves her sad and yet at ease. It leaves her in pain but with acceptance. The photograph is silent and leaves her silent as well. तो फोटो जिस तरीके से साइलेंट हो चुका है उसी तरीके से पोइटेस भी बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है और उसने लाइफ की जो सच्चाई है, ट्रुथ है कि जो वक्त में चला गया वो वापस कभी लौट कर नहीं आता है, तो यहाँ पर भी जो है वो बिल्कुल ईजी हो चुकी है। उसने मान ली है इस बात की सच्चाई को कि उसकी मदर जो है वो क्या हो चुकी है, हमेशा मौत के आगोश में सो चुकी है, वो खामोश हो चुकी है बिल्कुल। तो ये उसकी सच्चाई है कि उसकी मदर जो है वो जा चुकी है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है वो। तो ये सारी जो रियलिटी है लाइफ की, नो डाउट है लाइफ में हमें कई चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ता है जो हमारे डियर वंस है, चाहे मदर है, फादर है, ब्रदर, सिस्टर, फैमिली, लव वंस। तो ये सारे क्या है, जो भी हमारे क्लोज वन है, अगर हमें छोड़कर चले जाए, भले ही मान सकते हैं कि उस सच्चाई से हम कितना भी भागें, लेकिन रियलिटी यही होती है कि वो हमें वापस से कभी भी नहीं मिलते हैं। तो जो एक्सेप्टेंस है मन के किसी कोने के अंदर, हम जानते हैं, ये रियलिटी जानते हैं कि वो वापस से कभी लौट कर नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हम उस दर्द को झेलने के लिए तैयार रहते हैं। और आखिर हमें वक्त अपने आप उसको सिखा देता है कि हमें किस तरीके से उस दर्द को सहना है। तो वक्त अपने आप में एक हीलर होता है जिसे हम जो है बर्दाश्त करना या कहें वो सब चीज़ बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो यहाँ पर भी पोइट जो है बिल्कुल साइलेंट हो चुकी है जिस तरीके से वो जो है फोटो साइलेंट हुआ था। Summary of the chapter. The poem related to the cardboard to the poetess. Describe her feeling about the photograph of her mother when and their uncle took a photograph for her mother. And two cousins, they stood on the beach and they take the photograph of the poetess mother, had been dead for nearly 20-30 years. There is nothing to say about the situation given in the photograph. There is silence and stillness only. यहाँ पर जो है एक कार्डबोर्ड, एक फ़ोटो की बात की है पोइटेस की मदर की, जब वो सिर्फ 12 इयर्स की थी और वो सी जो है विजिटिंग पे गए थे वहाँ सी हॉलीडेज़ पे। तो उसकी जो कज़न सिस्टर थी उसकी मदर की बेटी एंड डॉली, वो जो है दोनों फ़ोटोग्राफ लेने के लिए गए। तो वो सीन जो फ़ोटो के अंदर आया है वो शो किया है। तो द थ्री स्टेंजास डेपिक्ट थ्री फ्रेजेस, इस चैप्टर में जो है 3 डिफरेंट स्टेंजा दिया और तीनों में डिफरेंट जो है सिचुएशन को शो किया है। द फर्स्ट स्टेंजा रिफर्स टू द चाइल्डहुड ऑफ द पोइट्स मदर। तो फर्स्ट स्टेंजा है वो चाइल्डहुड है पोइट्स की मदर का, एंड द सेकेंड स्टेंजा रिफर्स टू द पोइट्स चाइल्डहुड। और सेकेंड स्टेंजा के अंदर जो है पोइट का जो है चाइल्डहुड है when her mother was an adult, जब उसकी मदर क्या हो चुकी थी, एडल्ट। The last stanza refers to the poet adulthood when she is not with her mother. और थर्ड स्टेंजा जो है वो पोइट्स की खुद का ही एडल्टहुड हो चुका है जब उसकी मदर उसके साथ में नहीं थी। तो यहाँ क्या है, ह्यूमन लाइफ इज टेम्पररी एंड ट्रांजिएंट। द पोइट यूजेज अ ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो यहाँ पर जो है एक ट्रांजिट फीट जो यूज़ हुआ है वो इसीलिए ये हुआ है कि इंसान जो है वो टेम्परेली है, वो रह ही नहीं सकता दुनिया के अंदर। जो इंसान जो है बॉर्न हुआ है, नो डाउट है उसको भी एक दिन वापस से मरना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, शॉर्ट लिव्ड लाइफ ऑफ हर मदर। तो यहाँ पर जो है हाईलाइट किया है एक सिचुएशन को कि कोई भी इंसान जो ज़िंदगी में, चाहे हमारे लव वंस हो, कोई भी हो, वो जो है फॉर एवर हमारे साथ नहीं रह सकते। तो यहाँ एक सिचुएशन दिखाई है बड़ी ही अच्छी। Thank you for watching my videos. I hope so you liked it. If you like my video, please hit the bell icon for more updating videos. Do share, likes and subscribe my channel Nas Pathshala. Thank you. Take care. Bye bye.